Hello friends, let's study a very simple topic that is calendar. Yes, हमें वक्त को साथ में लेके चलना है, हमें वक्त को अपने हाथ में लेके चलना है. To start with the topic of calendar, it is very important for us to learn about the concept of odd days. What are odd days? जब मैं नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करता हूं, 7 से डिवाइड करता हूं मतलब उसको वीक में कन्वर्ट कर देता हूं, तो उसके बाद जो रिमाइंडर डेज बचते हैं 7 से डिवाइड करने के बाद, दैट आर नोन एज ऑड डे. For example, if I say I have 8 days, 8 days, 8 days can be written as 1 week and 1 odd day. 1 week and 1 odd day. 8 days will be written as 1 week and 1 odd day. Therefore, this one extra day, that is known as odd day. Let us take few more examples. If I have 25 days, 25 दिन का अगर मैं देखूं तो 25 दिन में कितने ऑड डे निकलेंगे? तो डिवाइड 25 विथ 7. 25 को 7 से डिवाइड करिए. You will have 3 weeks and 3 odd days. 3 weeks plus 3 odd days. You have 3 weeks and 3 odd days. I hope the concept of odd days is clear to you. Let's move ahead and learn few more important terms. Now, what is the concept of ordinary year and leap year? Ordinary year is the year having 365 days, जब फरवरी 28 days का होता है, और लीप ईयर जब फरवरी 29 days का होता है, साल 366 days का होता है. तो ये कंसेप्ट होता है ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर का. अब व्हेन आई टॉक अबाउट ऑर्डिनरी ईयर, सो ऑर्डिनरी ईयर हैव 365 डेज. ऑर्डिनरी ईयर हैव 365 days. This 365 days, when divided by 7, or we can say when converted into weeks and days, gives us 52 weeks and 1 odd day. That is, in an ordinary year or a normal year, we have 1 odd day. Talking about leap year, we often say that leap year has 366 days. It comes in 4 years, every 4 years. We will discuss about this concept later. First, and that if a leap year has 366 days, that is 52 weeks and 2 odd days. Therefore, we can say that a leap year has 2 odd days. Normal year has 1 odd day. Leap year has 2 odd days. Now, there is often a confusion. If I say I am standing in the year 1992. It's year 1992. Now, after 1992, the next leap year will be in 1996. Next will be in year 2000. Next will be in year 2004, right? Therefore, the sequence will be 1996, 2000, 2004. If I repeat the same question in context of year 2096, year 2096, तो 2096 के बाद अगला लीप ईयर कब आएगा? ईयर 2100 में.
नहीं, ये हमारा मिसकंसेप्शन है। 2096 के बाद ईयर 2100 will not be a leap year. The next leap year will be in the year 2104. ये कैसे होगा? जबकि इसके पहले ईयर 2092 लीप ईयर था, इसके बाद ईयर 2108 लीप ईयर होगा, 2100 लीप ईयर क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफन वी नेग्लेक्ट अ रूल ऑफ कैलेंडर। हम एक रूल को भूल जाते हैं कैलेंडर के। वो ये रूल कहता है कि every year divisible by 4 is a leap year if it is not a century. सेंचुरी कंप्लीशन वाला ईयर लीप ईयर नहीं होता है। तो फिर ईयर 2000 कैसे था? हर 4th सेंचुरी कंप्लीशन में वो लीप ईयर होता है। मतलब ईयर 2000 was a leap year. Year 2100 will not be a leap year. Year 2200 will not be a leap year. Year 2300 will not be a leap year. Year 2400 again will be a leap year. क्योंकि 2400 400 से डिवाइड हो जाता है, हर चौथी सेंचुरी 4th सेंचुरी कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब आज से हम ये नहीं बोलेंगे कि लीप ईयर डेफिनेटली हर 4 इयर्स में आता है। कभी कभी लीप ईयर हर 8 साल में भी एक बार आता है। 2 लीप ईयर्स के बीच का डिस्टेंस, ड्यूरेशन कभी कभी 8 साल भी होता है, अगर यदि वो सेंचुरी कंप्लीशन ईयर है जो 4th सेंचुरी नहीं है। राइट? सो वी कैन से दैट अ लीप ईयर is a year which repeats every 4 years. Many of the times, some of the times, it can be in 8 years also. A leap year has 366 days. That is 52 weeks and 2 odd days. We will mark it that a leap year has 2 odd days. Now the counting of odd days. How can we count odd days? odd days का काउंटिंग कैसे होगा? एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे। ऐसे में जब मैं 100 इयर्स को काउंट करता हूं तो 100 डिवाइडेड बाय 4 क्या आना था? 100 इयर्स में कितने लीप ईयर और कितने ऑर्डिनरी ईयर रहेंगे? आप कहते 100 को आप सर डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 25 लीप ईयर आते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था सेंचुरी कंप्लीशन वाला ईयर नॉर्मली लीप ईयर नहीं होता है, इसलिए वो एक लीप ईयर कम कर दीजिए। 100 ईयर में 24 लीप ईयर होते हैं और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर करना चाहूंगा, हमारा ऑड डे काउंट हम 7 के ऊपर नहीं ले जाते हैं। हर 7th ईयर मतलब 0, क्योंकि ऑड डे रिप्रेजेंट्स डे ऑफ द वीक और एक हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं। 8वें दिन वापस से वीक वहीं से रीस्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर यदि आज मंडे है तो आज से 7 दिन बाद फिर मंडे आएगा, मतलब 7 दिन का वीक साइकिल कंप्लीट। हम सब जानते हैं, ये बहुत इजी कंसेप्ट है। तो ऑड डे काउंट कभी भी हम 7 के ऊपर नहीं ले जाते हैं। ऑड डे काउंट चलता है 0 से लेके 6 तक। जैसे ही हम 7 पे आते हैं ऑड डे काउंट वापस 0 से चालू हो जाता है। सो इफ आई टॉक अबाउट देयर आर 24 लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स। 24 leap years multiplied by 2 odd day will result into 48 odd days. 76 year multiplied by 1 odd day will result into 76 odd days. Now we can use 2 approaches. Either we can add this and divide it by 7 to get 17 weeks and 5 odd days,
or there is an alternative method also. Divide 48 by 7. Divide 48 by 7. That will give us 6 weeks and 6 odd days. Take only the odd days. Therefore, I can say that 48 days when divided by 7 or when converted into weeks and days will give us 6 weeks and 6 odd days. Therefore, here we are left up with 6 odd days. 76 odd days when converted into weeks and days will give 10 weeks and 6 odd days. 10 हफ्ते और 6 odd days देंगे, तो यहां से भी 6 odd day बच रहे हैं. The 6 plus 6 odd day will become 12 odd day. Again convert it into weeks and days, that is 1 week and 5 odd days. Hence we can say that overall there are 5 odd days left. 12 days matlab 1 week plus 5 odd days. Hence we have 5 odd days in 100 years. A duration of 100 years, complete 100 years carries 5 odd days. Now, if there are 5 odd days in 100 years, if there are 5 odd days in 100 years, how many odd days in 100 years? That is 5 into 2, 10 divided by 7. That is a remainder of 3 odd days. That is a remainder of 3 odd days. Number of odd days in 300 years, 5 into 3, 15 divided by 7, a remainder of 1 odd day. Now what about 400 years? 5 into 4, 20. But as I told, every 400th year is a leap year. Year 2000, year 2400 का एग्जाम्पल जो मैंने आपसे दिया था, तो 400th year is a leap year. That means it will have 1 extra odd day, 1 normal odd day and 1 extra odd day for leap year. Hence, it will be a total of 21 days. 21 odd days will give 3 weeks and 0 odd day. Therefore, it will have 0 odd day. 400 साल में 0 odd day होते हैं. ऐसे ही 800 साल में, 1200 years में, 1600 years में, 2000 years में, 2400 years, हर 400 साल में ओवरऑल 0 odd days बचते हैं. Now, how are days of week related to odd days? If I say after all the calculations, I have 0 odd days left. 0 odd days means it's a Sunday. 0 odd day indicates Sunday. 1 indicates Monday. 2 for Tuesday. 3 for Wednesday. 4 for Thursday. 5 for Friday. And 6 for Saturday. 6 odd day indicates it's a Saturday. और सैटरडे के बाद अगला दिन क्या आता है? संडे. इसीलिए 6 के बाद 7 पे जाने की जगह हम कहां जाते हैं? सीधे 0 पे. I think this theoretical part is pretty clear to you. Let us have a look over a couple of questions giving example of odd day calculations. My first question is, if say I have a date 29th May 2020, what was the day of week on 29th May 2020? How to calculate that? So, for this calculation, we need to design an inventory of questions, inventory of odd days. My date is 29th May 2020.
Initially, I will do calculation of 2019 years because year 2020 is not yet complete. Year 2020 अभी चल रहा है, इसलिए 2019 तक के मैं कैलकुलेशंस पहले करूंगा. 2019 first 2000 years, that is we will look over a multiple of 400 कि 400 के मल्टीपल से हम कहां तक पहुंच सकते हैं. तो 400 का मल्टीपल 2019 के पहले आएगा 2000, तो 2000 ईयर्स के 0 ऑड डेज. रिमेनिंग 19 ईयर्स, बचे हुए 19 साल. 19 ईयर्स में कितने नॉर्मल ईयर और कितने लीप ईयर आएंगे? तो 19 ईयर्स में 4 लीप ईयर आएंगे. 2004, 8, 12 और 16. तो we will have 4 leap years and remaining 15 normal years. 4 leap years will give us 2 leap year, 2 odd days every leap year, that is 8 odd days, and 15 normal years will give us 15 odd days. 8, the remainder is 1 odd day. 15, the remainder when divided by 7 is 1 odd day. 1 plus 1 will give us 2 odd day in 19 years. 19 years में 2 odd day होंगे. Am I clear? I hope this concept is pretty clear to you. 19 में 2 odd day होंगे. अब बची हुई डेट्स का कैलकुलेशन. सो हमारे पास है 29 मई 2020 तक आना है. तो इसका कैलकुलेशन कैसे चलेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई. जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 डेज. तो जनवरी के 31 डेज को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर होगा 3 ऑड डेज. फरवरी 2020 है, मतलब ये लीप ईयर वाला फरवरी है, इसमें 29 डेज हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ऑड डे. मार्च वापस से 31 डेज का है तो 3 ऑड डे. अप्रैल 30 डेज का है तो 2 ऑड डे. और मई, मुझे 29 मई तक का टाइम लेना है, तो 29 को इंक्लूड करना है यहां पर. 29 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1 ऑड डे. तो टोटल मेरे पास कितने ऑड डे बनते हैं यहां पर? टोटल बनते हैं 10 ऑड डे. 10 ऑड डे डिवाइडेड बाय 7, मेरा रिमाइंडर आता है 3 ऑड डे. रिमाइंडर आता है 3 ऑड डे. रिमाइंडर 3 ऑड डे मतलब 29 मई, यहां के 3 ऑड डे और ऐड हो गए. 29 मई के 3 ऑड डे ऐड हुए तो इन टोटल आई विल हैव 5 odd days. In total, I will have 5 odd days finally, and 5 odd day represents Friday. That means I can say that 29th May 2020 was a Friday. 29 मई 2020 को Friday था. 29th May 2020 was a Friday as per calculation. Let me repeat this calculation. If I want to figure out 29th May 2020, first I need to take 2019 years. ते एक साल पहले तक का कंप्लीट. तो 2019 मुझे देखना है कि 400 के मल्टीपल्स कहाँ तक होते हैं. सबसे पहले हम 400 के मल्टीपल्स देखते हैं. तो 400 के मल्टीपल्स मतलब 2000 तक 400 का मल्टीपल हो जाएगा. तो 2000 ईयर्स में 0 ऑड डे. बचे हुए 19 ईयर्स का कैलकुलेशन
19 ईयर्स में 4 लीप ईयर, 15 नॉर्मल ईयर। 4 लीप ईयर मतलब 8 ऑड डेज, मतलब रिमाइंडर 1 ऑड डे। 15 नॉर्मल ईयर मतलब 15 ऑड डेज, रिमाइंडर 1 ऑड डे। 1 + 1 इन टोटल विल बी 2 ऑड डेज, जो हम यहां पर नोट कर देंगे। ये अलग से हमने जो ऑड डे इन्वेंट्री बनाई है। अब हम 29 मई का कैलकुलेशन करेंगे। जनवरी के 3, फरवरी का 1, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई का 1, टोटल 10 ऑड डे। फिर 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 ऑड डेज, जो यहां पर ऐड कर देंगे। 2 + 3 becomes 5 odd days. 5 odd day represents Friday. 5th day of the week is Friday, right? Now we have a question. Second question is, the calendar for the year 2005 is same as for the year 2005 का कैलेंडर मैं वापस से कौन से साल में यूज कर पाऊंगा, कौन से साल से सेम होगा ईयर 2005 का कैलेंडर? कैलेंडर रिपीटेशन के लिए 2 कंडीशंस हैं। 1 जनवरी जिस साल का, जैसे 2005 की बात कर रहा हूं, तो 2005 1 जनवरी को जो डे होगा वही डे जब अगली बार आएगा 1 जनवरी को, तब कैलेंडर रिपीट होगा। लेकिन टेक अ प्रिकॉशन ओवर हियर कि या तो बोथ नॉर्मल ईयर्स हैं या बोथ लीप ईयर्स हैं। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर पूरा रिपीटेशन मतलब पूरा ईयर के डेज का रिपीटेशन वो कब होगा? वो तभी होगा जब नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर से मैच करेगा और लीप ईयर का लीप ईयर से मैच करेगा। सो लेट्स लुक ओवर हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस क्वेश्चन नंबर 2। मेरा स्टार्टिंग ईयर है 2005। ईयर 2005 नॉर्मल ईयर था कि लीप ईयर था? ईयर 2005 एक नॉर्मल ईयर था। यहीं से कैलकुलेशन चालू करेंगे। इसका एक ऑड डे एक्यूमुलेट हुआ। इस एक ऑड डे की वजह से मेरा ईयर 2006 का कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ेगा। इसका इफेक्ट किस पे आएगा? 2006 के कैलेंडर पे आएगा। मान लीजिए इस साल आपका बर्थडे फ्राइडे को है, तो अगले साल सैटरडे को आएगा ना, अगर ये नॉर्मल ईयर है तो। और बीच में लीप ईयर आ गया तो वो संडे को हो जाएगा। इस तरह से ऑड डे वीक का डे चेंज करते हैं। सो 2005 के एक ऑड डे का इंपैक्ट 2006 पे आया। 2006 से मुझे एक ऑड डे मिला। 2007 से मुझे एक और ऑड डे मिला। 2008 2 ऑड डे मिले। 2008 के 2 ऑड डे हुए ना। हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं रिपीटेशन मतलब 7 ऑड डे का मुझे कलेक्शन चाहिए। 7 ऑड डे कलेक्ट हो गए मतलब कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो 2008 के 2 ऑड डेज, 2009 का एक ऑड डे और 2010 का एक ऑड डे। कितने ऑड डे इकट्ठे हो गए मेरे पास? आई हैव 7 ऑड डेज इन टोटल। 7 ऑड डे कलेक्ट हो गए हैं और जैसा मैंने बताया इसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर पे आता है। इसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर पे आता है। तो जो 7th ऑड डे 2010 का कलेक्ट होगा उसका इंपैक्ट 2011 के कैलेंडर पे आएगा। मतलब माय आंसर इज दैट calendar for the year 2005 is same as for the year 2011. 2005 का जो कैलेंडर है वो 2011 में रिपीट होगा। I hope these concepts are clear to you. If in case you have any